Namaste bachcho, welcome back to the chapter life processes. For this particular chapter we have already spoken about nutrition, that is digestive system. Then we have spoken about transportation, that is a circulatory system. Respiration, that is about lungs and breathing. And now we are going to talk about the process of चलो पढ़ो एक्सक्रीशन। एग्जाम में लिखना ऐसा स्पेलिंग फिर मारूंगा, यहां सर मजाक में ऐसा लिख रहा है बेटा। ओके, basically we are going to talk about the process of excretion. So in this particular chapter we are going to talk about kidneys in detail, one of my favorite. Let's begin. Now what is excretion? Now here the point is, excretion is defined as the process of elimination of nitrogenous waste from the body. See beta, in this particular chapter if we ask a basic question like okay, how do we get nutrients, then the process is a digestive system, right? Okay, how do we get oxygen in our body, then the process is a breathing, that is a respiratory system. How do we eliminate a waste gas, that is carbon dioxide? Again the answer is respiratory system, that is breathing process beta. Okay, then we talk about how do nutrients reach from one part to another, that is circulation, that's because of pumping action, that is heart. I hope और मैं उम्मीद करता हूँ कि हार्ट का सेक्शन स्पेशली तुमको बहुत अच्छे से समझा होगा. Okay, this video is specifically only for school section students. Okay, for college section students refer to my next playlist. We are talking advanced, we are talking quite a high level point of view, but यहाँ पे we are going to discuss only basics of excretory system. अब होता ये बेटा कि हमारे ब्लड के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जिसको ब्लड में से निकाल के यूरिन बनाने का काम किडनी का है बेटा. ओके, सो एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. In unicellular organisms, this process takes place through the process called as a diffusion. Diffusion is a type of transport where the material moves from area of higher concentration to lower concentration directly. So unicellular organism जिसके पास सिर्फ सिंगल सेल है, तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स उसके अंदर बन रहा है ना, वो उसको डायरेक्टली बाहर फेंक देता है बेटा. That process is called as diffusion. But multicellular organism में the process is different. So multicellular organisms, for example human, we will show presence of excretory system. So now we are going to talk about human excretory system. Human excretory system consists of two kidneys, two ureters, one urinary bladder, and one urethra. Okay, now before we go on to detailing of this beta, first we will learn how to draw human excretory system in detail. Okay, so pay attention over here beta. So for human excretory system, we will start with two pipelines first. So this pipeline is blood vessel which is called as aorta. ओके, सो ऐसा एक पाइपलाइन बना लो बेटा. फिर इसी को पैरेलल
और एक ब्लड वेसल हम लोग बनाएंगे, दिस विल बी इंफीरियर वेना केवा, उसका ब्रांचिंग यहां से दिखाओ और इसके साथ पैरेलल जा रहा है बेटा, सेम यहां से एक ब्रांचिंग इसके साथ पैरेलल जा रहा है बेटा, okay, so this is the first step of drawing it beta, two blood vessels, one behind another, this is like Titanic pose, okay, the hero and the heroine beta, that's how we describe it, okay, anyways exam में Titanic ये सब लिखना नहीं, मार खाएगा बेटा, okay, तेरा Titanic डुबा देगा मैं, alright, so you have this red colored blood vessel which contains oxygenated blood, this is aorta, followed by the blue colored blood vessel which is inferior vena cava which contains a deoxygenated blood. अब दोनों साइड हम लोग किडनी ड्रॉ करेंगे बेटा, पहले है ना लाइट शेप ले लेते हैं, once if you are confident of the shape then beta you can dark it. This is one kidney, डिफेक्टिव किडनी, डिफेक्टिव किडनी नहीं बनाने का, ओके, अनदर किडनी, अच्छा अब इसमें ये याद रखना बेटा that the left kidney has to be slightly higher than the right kidney, this is extra information, school level में this is not valid, okay, but as you will go for the college level so you should realize that अवस्थी सर ने हमको पहले से ही बता के रखा था, alright, okay, now for this particular kidney इसका शेप थोड़ा सा कम कर देते हैं बेटा, चलो कनेक्ट द ब्लड वेसल्स इनसाइड बेटा, then on top of kidney you are going to draw these glandular structure, these are called as adrenal glands, बताता हूँ नेमिंग बेटा, okay, then you come lower down and you will draw urinary bladder, almost a triangular बेटा, now किडनी में से दो पाइपलाइन निकालो, 1 2, double it up, these are ureters, double it up, उसका ओपनिंग पीछे से अंदर की तरफ है बेटा, सो उसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, okay, then from the tip one small pipe that is urethra, okay, now let us name this diagram, this diagram is of human excretory सिस्टम, ना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या दिख रहा है तुमको बेटा, इस तरफ दिस इज लेफ्ट एड्रीनल
gland. This is left kidney. Okay. Next, aorta will bring blood into the kidney through renal artery. So ये जो मेन रेड वाला पाइप है ना, that is called as aorta. Okay. And blue wala will take the blood away from the kidney. Blue wala vessel is inferior vena cava. Inferior vena cava. Okay. रेड वाला एओर्टा का जो ब्रांच है ना, ये दो पतला पतला रेड वाला, दैट इज रीनल आर्टरी. सो अगर इस तरफ उसको नेम कर रहे हो ना बेटा, so that should be left renal artery. Okay, this will be left ureter. This will be left urinary bladder. नहीं, यूरिनरी ब्लैडर एक ही है ना, इसमें लेफ्ट राइट नहीं होएगा, इसमें एक ही होता है बेटा. ओके. This is the place where your urine gets stored, and this is the passage through which you pass urine out. This is called as urethra. Okay, this side, right ureter, okay, then here right kidney, okay, blue वाला right renal vein, और ये ऊपर की तरफ होगा राइट एड्रिनल ग्लैंड. राइट एड्रिनल ग्लैंड. Okay. Acha. Now in this diagram, the extra point that you have to remember is right kidney is slightly lower in position than the left kidney. हमारा जो राइट किडनी है ना, वो थोड़ा नीचे होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी. सर ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज इन ऑर्डर टू एकोमोडेट लीवर. सो दिस इज बिकॉज ऑफ लीवर. सो एब्डोमेन में राइट साइड में यहाँ पर लीवर है बेटा, और ये लीवर ना पीछे तक एक्सटेंड होता है. सो राइट किडनी है ना, वहां से स्टार्ट नहीं हो सकता है, इसलिए राइट किडनी थोड़ा नीचे से स्टार्ट होता है और लेफ्ट किडनी कंपैरेटिवली थोड़ा ऊपर होता है. रिमेंबर दिस पॉइंट. ओके फाइन. चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा. डन. ऑलराइट. Now let us see the position of kidney. Kidneys are located in the abdomen, one on either sides
of lumbar vertebral bones. Now I will tell you how this works. Vertebral bones का मतलब होता है बैकबोन, और बैकबोन में जो लोअर पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एज लंबार एरिया. सो अपने बैकबोन में देखो, ये पूरा बैकबोन है बेटा. ओके, इसका जो लोअर पार्ट है ना, दैट इज कॉल्ड एज लंबार एरिया. सो जो तेरा बैकबोन है, ओके, वन ऑन आइदर साइड ऑफ इट, एक किडनी इस तरफ, एक किडनी इस तरफ, यानी एग्जैक्टली किडनी कहां पर है बेटा? एग्जैक्टली किडनी यहां पर है. वन ऑन दिस साइड, अदर ऑन दिस साइड. दिखा बेटा? नहीं दिखेगा, अंदर की तरफ है, इमेजिन करना पड़ेगा. ओके, अब क्या बाहर असली का निकाल के तो दिखाएगा नहीं तेरे को. ऑलराइट, सो इमेजिन करने का. सो किडनीज आर प्रेजेंट वन ऑन आइदर साइड्स ऑफ द लंबार वर्टिब्रल बोन्स. ये एक याद रखो. मूविंग ऑन, नेक्स्ट. Kidneys are made up of many tiny cells which are called as nephron. Kidneys are made up of many tiny cells which are called as nephron. Nephron is described as basic structural and functional unit. Basic structural and functional unit of kidney. ओके, किडनी के जो बेसिक सेल है ना, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं. दैट इज आल्सो डिफाइंड एज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. नेफ्रॉन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं बेटा? एक नेफ्रॉन में तुमको कौन से पार्ट्स मिलेंगे बेटा? नेफ्रॉन में तुमको मिलेगा फर्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. ओके, देन कम्स द सेकंड पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज बोमैन्स कैप्सूल. देन नेक्स्ट पार्ट व्हिच इज कॉल्ड एज a PCT. देन Henle's loop. Then comes a DCT and then comes a CT, also called as CD. PCT is a proximal convoluted tubule. मैं तुझे अभी थोड़ी देर में डायग्राम में दिखाता हूँ, फुल फॉर्म का भी टेंशन मत ले बेटा. Then comes Henle's loop, distal convoluted tubule, collecting tubule and the collecting duct. Okay, right? इसका फुल फॉर्म लिख के रखते हैं. Proximal convoluted tubule. Tubule means a tube-like structure, and convoluted मतलब folded. Proximal means near. DCT, distal convoluted tubule. Then comes CT, collecting tubule. And if it is a CD, then it is called as collecting duct. चलो फुल फॉर्म बाय करो. Proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule, collecting tubule and collecting duct. Okay, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटा. इतना बाय हार्ट करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो. डन. ओके, अब हम लोग बहुत ही मेन डायग्राम करेंगे बेटा. द डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन. What is nephron? You know, nephron is the basic cell of the kidney beta. Nephron is the basic cell of kidney. अब एक नेफ्रॉन कैसा दिखता है उस बारे में बात करते हैं.
तो समझो फॉर एग्जांपल ये किडनी के अंदर का एक सेल है, ये दिख रहा है बेटा, इसको मैं बाहर निकाला, है उधर नहीं है, क्यों, इधर है, सर जादूगर है बेटा, पार्ट टाइम जादूगर, पार्ट टाइम तांत्रिक, असली का तांत्रिक नहीं है, लोगों को बोलने का नहीं, सर डॉक्टर है बेटा, ओके, डॉक्टर बाय प्रोफेशन, टीचर बाय पैशन। अब ये किडनी का सेल, अब इसको मैग्नीफाई करेगा, जूम हो जाएगा, अब ये बड़ा होके कैसा दिखेगा वो देखते बेटा। सो द बेसिक सेल ऑफ किडनी लुक्स लाइक दिस। अब इसमें स्टार्टिंग में ना बेटा, ओके, यू हैव टू ड्रॉ ऐसा कप शेप पार्ट, और यू कैन से सी शेप पार्ट, देन उसके बाद ऐसा फोल्डेड ट्यूब ड्रॉ कर बेटा, फिर फोल्डेड ट्यूब के बाद में गो स्ट्रेट डाउन, ओके, यू शेप रहेगा, सो उसके सामने भी एक ट्यूब ड्रॉ करके रख बेटा, टेक अ टर्न, गो पैरेलल टू इट, थोड़ा टेढ़ा आया, वापस से करेगा, लाइंस ऑलमोस्ट ओके फाइन, इसको भी थोड़ा स्ट्रेट कर लेते हैं, डायग्राम शुड लुक एप्रोप्रिएट, टेढ़ा मेढ़ा डायग्राम मजा नहीं आएगा बेटा। आई एम नॉट सेटिस्फाइड अंटिल आई एम सेटिस्फाइड, बायो मतलब जी जान लगा देगा, डायग्राम मतलब बहुत सुंदर होना मांगता है बेटा। थोड़ा टेढ़ा रहेगा चलेगा, बट ऐसा यू शेप दिखना चाहिए बेटा, आ रहा है, हाँ चलेगा, ओके सर अभी भी टेढ़ा है, चुप रहे, थोड़ा बहुत चला के लेने का बेटा, हाँ ओके। नाउ आफ्टर दिस अगेन यू विल ड्रॉ folded tube like structure, and then after this a straight pipe here, now this is how kidney का basic cell looks like, okay। अब यहाँ पे इसके अंदर ना ब्लड कैपिलरीज बनाना है, यानी पतले पतले ब्लड वेसल्स बनाना है बेटा, तो यहाँ पे एक मोटा ब्लड वेसल बनाओ, और यहाँ पे इसका डायमीटर थोड़ा नैरो बनाओ, ये एडवांस कॉलेज सेक्शन में तुमको समझेगा, जिससे ब्लड आता है ना उसका डायमीटर वाइड है, और जिससे ब्लड निकलता है ना उसका डायमीटर थोड़ा नैरो होता है बेटा। Now moment we are through with this, then next what we are going to do is, अब यहां से ना ब्लड वेसल्स निकालो बाहर, go parallel to it, take it down, इसके पीछे से निकालो, let this go straight ऐसा, थोड़ा वेवी फॉर्म में, इसके पीछे से, ओके। नाउ द वे आई एम डूइंग इट, उस तरह से ही तुझे करना है। These blood vessels na, they are going to coil around the tubes which I have drawn बेटा, वो ट्यूब को पूरी तरह से लपेट लेगा। सर क्यों लपेट लेगा? पतंग चकाने का है क्या? ए लपेट नहीं, पतंग नहीं चकाने का, ब्लड वेसल है, ध्यान दो। ओके, नाउ हियर लेट दिस पार्ट कम डाउन, एट सर्टेन पॉइंट जहां तुम इसके ऊपर से लोगे ना तो बाकी का ट्यूब रब कर देने का। ये इसके पीछे से जा रहा है,
Fantastic. That is how it is going to cover it up. Okay. Now the diagram which is given in your textbook is much more complicated. I recommend you do not draw that. Okay. Whether it is for school section or college section, you draw only this diagram बेटा. तो इसमें क्या करना है, पहला कप शेप पार्ट, उसके बाद ट्यूब बनाओ, ड्रॉ यू शेप ट्यूब, अगेन द ट्यूब, कम डाउन, यहाँ से वेसल्स निकालो और इसको कैसे ड्रॉ करना है मैंने तुझे अभी अभी बताया बेटा. ठीक है. अब नेमिंग कर लेते हैं बेटा. ये स्टार्टिंग में जो पूरा का पूरा कैपिलरीज है ना बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस. दिस इज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस. अभी अभी हम लोग ने नेफ्रॉन के पार्ट्स लिखे थे ना बेटा, वैसा. ओके. फिर ये जो पूरा कप शेप पार्ट है ना, ये पूरा, दिस इज कॉल्ड एज बोमेन्स कैप्सूल. देन फिर ये येलो वाला जो ट्यूब है ना, सिर्फ येलो वाला बेटा, दैट इज कॉल्ड एज ए पीसीटी. यू रिमेंबर द फुल फॉर्म? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज पीसीटी. फिर ये येलो वाला जो पार्ट है ना, this is called as a DCT. Full form? Distal convoluted tubule. अब देख, दिमाग लगा, ट्यूब्यूल क्यों बोला है दोनों को? क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. ये पूरे सेल को, ये किडनी का एक बेसिक सेल है, दैट इज कॉल्ड एज नेफ्रॉन. दिस इज नथिंग बट जस्ट अ डॉट इन द किडनी. और किडनी में ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं बेटा. ओके. और ये नेफ्रॉन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का बना है, जो बहुत पतला और छोटा छोटा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. और क्योंकि छोटा ट्यूब है इसलिए इसको ट्यूब्यूल बोलते हैं बेटा. नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज नियर. यू सी दिस पार्ट, दिस इज एट अ डिस्टेंस, दैट इज व्हाई डिस्टल. एंड व्हाई कॉन्वोल्यूटेड? क्योंकि स्ट्रेट ट्यूब नहीं है, इट इज हाईली फोल्डेड, इट इज थ्रोन इनटू लूप्स. ओके. दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्वोल्यूटेड. सो बेटा यू हैव प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और यहां पर हमारे पास है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. अब ये जो पूरा का पूरा रेड कलर का ट्यूब है ना बीच में, दिस इज कॉल्ड एज हेनलीज लूप. हेनलीज लूप. देन दिस लास्ट पार्ट इज कॉल्ड एज कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल के लास्ट पार्ट को बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट. ओके. और ये जो बाकी का पतला पतला ट्यूब जो है ना, जो पूरी तरह से लपेट लिया है नेफ्रॉन को, दीज आर कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज. पेरीट्यूब्यूलर capillaries. And yes, this diagram is the diagram of nephron, which is the basic cell of kidney beta. Okay. अब तू सुन मैकेनिज्म कि किडनी काम कैसे करता है. किडनी के अंदर ना ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं. एक छोटा सा डॉट निकाला, मैग्नीफाई किया, बड़ा हो गया बेटा, इस तरह का दिखता है. अब किडनी का मेन फंक्शन क्या है मालूम है? अपने ब्लड में जितना भी वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट, और यूजुअली नाइट्रोजिनस वेस्ट में ना दो ही बुरे केमिकल्स होते हैं बेटा. हमारे बॉडी में दो बैड केमिकल्स बनते हैं जिसको बोलते हैं यूरिया एंड यूरिक एसिड. यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये दोनों नाइट्रोजिनस वेस्ट को ब्लड से निकालता है किडनी और इसको बॉडी के बाहर फेंक देता है. कैसे? अब मैकेनिज्म देखो. ओके. पूरा डिटेल सिखाता हूं बेटा, ध्यान से समझ इसको. हमारा हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, सो हार्ट में से जो बड़ा ब्लड वेसल बाहर निकलता है उसको एओर्टा बोलते हैं. एओर्टा ऐसे घूम के हमारे पेट के अंदर जाता है, फिर ये एओर्टा नीचे आ रहा है. अब एओर्टा में से एक ब्रांच इस किडनी में जाता है, दैट इज द लेफ्ट रीनल आर्टरी.
और एक ब्रांच इस किडनी में जा रहा है, दैट इज राइट रीनल आर्टरी। फिर ये रीनल आर्टरी हर एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, छोटे 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 छोटे, जिसको जूम करेगा तो ऐसा दिखेगा, सोच ऐसा, ये सारा स्ट्रक्चर मिलियन है एक किडनी के अंदर और मिलियन है इस किडनी के अंदर। यू कैन इमेजिन कितना कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। सो रीनल आर्टरी जब ब्लड लेके आता है ना, रीनल आर्टरी डिवाइड होता है छोटे छोटे ब्रांचेस में, छोटे छोटे ब्लड वेसल्स में, और फिर जाके ये है ना रीनल आर्टरी का ही डिवीजन है बेटा। अब यहां से ब्लड एक नेफ्रॉन के अंदर आया, अब मैं जो तुझे एक नेफ्रॉन में सिखा रहा हूं ना, वो किडनी के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में होता है बेटा। सो ब्लड है ना, अब आया अल्टीमेटली यहां पर, फिर वहां से फ्लो होके वो ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में। ग्लोमेरुलस के अंदर क्या होता है ना, ब्लड में जितना भी कचरा है, उसमें जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिया और यूरिक एसिड, वो फिल्टर होके आता है फिर बोमेन्स कैप्सूल में। फिर बोमेन्स कैप्सूल से वो फ्लो होके जाता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से वो कचरा फ्लो होके जाएगा हेनलीज लूप में। हेनलीज लूप से वो कचरा जाता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यानी डीसीटी में। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से अल्टीमेटली वो कचरा जाता है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में, और फिर वहां से वो कचरा जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। सर तो फिर ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का क्या काम है? पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज क्या करता है ना, कि अगर और कोई कचरा डालना है तो डायरेक्टली इसमें डाल देते बेटा, और अगर इसमें ये किडनी के नेफ्रॉन के सेल के अंदर जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसमें अगर कोई यूजफुल मटेरियल है तो यूजफुल मटेरियल भी पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, क्योंकि ये यूजफुल मटेरियल फिर बॉडी को लौटा दिया जाता है, और जितना भी कचरा है ना वो नेफ्रॉन के अंदर डाला जाता है, तो कचरा पूरा का पूरा इस पैटर्न से फ्लो होके यहां तक पहुंचता है। एक बार वापस बोलता हूं, सो अल्टीमेटली ब्लड आता है यहां से एओर्टा से रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी बहुत छोटे छोटे वेसल्स में डिवाइड होता है, उसमें का ही एक वेसल ये है। फिर वो ब्लड अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस में आया, ब्लड में जितना भी कचरा था, यूरिया और यूरिक एसिड बोमेन्स कैप्सूल में आया, वहां से पीसीटी, पीसीटी से हेनलीज लूप, हेनलीज लूप से डीसीटी, डीसीटी से कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से कलेक्टिंग डक्ट। अब ये तो एक नेफ्रॉन का है, सो यहां से ना फिर एक ड्रॉप यूरिन निकला जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड है, कचरा है, यूरिन फालतू है ना बेटा, वेस्ट है ना, ओके। अब एक नेफ्रॉन में से एक छोटा सा ड्रॉप यूरिन का बना, सोचो ऐसा मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन में सेम प्रोसीजर हो रहा है, सब लोग छोटा 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 एकदम छोटा छोटा एकदम छोटा 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 ड्रॉप्स, एकदम छोटा छोटा यूरिन का ड्रॉप्स बनाते हैं बेटा। फिर वो छोटा छोटा यूरिन का ड्रॉप्स कंबाइन हो के बड़ा ड्रॉप बनता है, फिर वो बड़ा ड्रॉप किडनी से होते हुए कहां पे आएगा? यूरेटर में। फिर यूरेटर से धीरे धीरे होके टिप टिप बरसा पानी, नहीं टिप टिप यूरिन इज कमिंग डाउन बेटा, ओके। फिर धीरे धीरे दिस यूरिन कीप्स कमिंग डाउन और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। Urinary bladder is a bag-like structure which is present on our lower abdomen. और जैसे धीरे धीरे उसमें यूरिन भरते जाता है ना, जब 300 ml यूरिन उसमें भर जाता है, at that time we get urge to pass urine. Urge means what? Urge means sensation. तब हमको एहसास होता है कि हमको यूरिन पास करना चाहिए, और ये ब्लैडर ज्यादा से ज्यादा 1000 ml यानी 1 लीटर तक यूरिन स्टोर कर सकता है, ओके। फिर जैसे ये ब्लैडर भरते जाता है ना यूरिन से, ओके, देन दिस रिंग ऑफ मसल, this ring of muscles will open up, and moment this ring of muscle open up, we get that sensation as if we are passing urine, and that's how we pass urine. अब ये है biology. Some people cry, they find this difficult, they cry and they say, Awasthi sir, I just want to pass urine without knowing how it is made and from where to where it travels. But biology says you should know the process which is going on in your body. So अभी भी ना, जब तू मुझे सुन रहा है, अभी भी तेरे किडनी के एक एक नेफ्रॉन के अंदर जो ब्लड आ रहा है ना, वो ब्लड ग्लोमेरुलस में जा रहा है, उसमें से यूरिया और यूरिक एसिड बोमेन्स कैप्सूल में जा रहा है, बोमेन्स कैप्सूल से पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट। ये तो एक नेफ्रॉन को, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन धीरे धीरे करके एक ड्रॉप यूरिन बना है, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन यहाँ यूरिन बना है, ये यूरिन धीरे धीरे जाके तेरे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है अभी, पर तू अभी यूरिन पास नहीं करेगा, क्यों? थोड़ा जमा हो जाने दे ना, एक एक ड्रॉप थोड़ी कोई यूरिन जाके पास करेगा पूरा दिन, और कोई काम नहीं है क्या? इसलिए भगवान ने हमको यूरिनरी ब्लैडर दिया कि थोड़ा जमा हो जाने दो।
फिर जब वो जमा हो जाता है ना, एट दैट टाइम द यूरिनरी ब्लैडर सेंड्स मैसेज टू द ब्रेन एंड टू द स्पाइनल कॉर्ड, दैट इज टू द नर्वस सिस्टम, and then the nervous system recognizes that yes, it's time, we should pass urine. So the brain and the spinal cord will then send a message to our leg muscles, to our eye muscles. Eye muscles will contract, they will look for an appropriate place. Where is the public washroom, where is the private washroom? हाँ, washroom मिला. Leg muscles will contract so that you will start walking, or if it is urgent you will start running, and then your ring of muscles will open and then you will pass urine. So the urine which comes out, why it is called as urine? Because इसके अंदर यूरिया और यूरिक एसिड है. यूरिया और यूरिक एसिड क्या है? ये नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यानी वेस्ट है, केमिकल है जिसके अंदर नाइट्रोजन है, और ये हमारा बॉडी कंटिन्यूअसली बनाते रहता है बेटा. और ये यूरिन कहां से कहां होके आया? नाउ यू नो द यूरिन यात्रा, द जर्नी, ओके, द टूर ऑफ यूरिन, कहां से हुआ और कहां से गया. और जितना भी अच्छा मटेरियल है ना, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बॉडी को वापस लौटा देता है बेटा. सो इस तरह से किडनी क्या करता है ना, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है. हमारे ब्लड में जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, उसको निकाल के बाहर फेंक देता है. जैसे लंग्स भी है ना, क्या है, गैस को फिल्टर करते हैं, ऑक्सीजन रख लेते हैं और वेस्ट गैस को बाहर फेंक देते हैं बेटा. अंडरस्टैंडिंग दिस? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. डन? All right, बच्चों. So this was the lecture regarding excretory system. For the next lecture, we are going to talk about अगर किडनी खराब हो गया तो क्या, और डायलिसिस के बारे में बात करेंगे, और उसके साथ साथ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन के बारे में बात करेंगे. टिल देन रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो. थैंक यू बेटा.